वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के एक चैप्टर को रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन आप जो है क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर जस्ट एक रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन। एंड आफ्टर दैट हम जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। So first of all, let us understand what is relation. Relation is a subset of a Cartesian product of two non-empty set, or you can also set two sets. So suppose two non-empty set P and Q. Then the Cartesian product is P cross Q is the set of all order pair of elements from P and Q. We can represent this statement like this. Like this, Cartesian product of P and Q, P and Q, and every P belongs to set P, and element Q belongs to set Q. And this is a representation of a relation. Relation is a Cartesian product of two non-empty sets. So basically, suppose, let us understand with the help of example. A is a set and B is another set. So let us find out A cross B. A cross B means cross product of non-empty set or Cartesian product of two non-empty set. So first element come with first and first element come with second element 1 comma 3, and same as it is 2 come with 2, order pair 2, and 2 with 3. So this is basically cross product of two set and Cartesian product of two set. So basically this statement talk about this. This is a relation. This is a relation. Relation. This is a Cartesian product also. Cartesian product of two non-empty set A and B. So basically ये स्टेटमेंट है इसकी, कोई भी दो सेट दिए होंगे जो कि नॉन एम्प्टी होंगे और उनका जो है कार्टीजन प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे तो वही कार्टीजन प्रोडक्ट जो होगा वो जो है इसका रिलेशन। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में सीखा था। अब बात करते हैं फंक्शन की कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन रिलेशन, फंक्शन एक जो एक फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है, रिलेशन है। फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of a set A has one and only one image in set B. फंक्शन का क्राइटेरिया ये है कि every element of a set A has one and only one image in set B. कोई दो सेट होंगे A and B जिसमें A सेट की हर एलिमेंट की इमेज सेट B में प्रेजेंट। Suppose this is a set A, this is a set B. So इसकी इमेज सेट में एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे सेट ए है ये सेट बी है। सेट ए में 1 2 3 4 ये सब के सब है एलिमेंट। सेट बी में 2 3 4 ये सेट बी के एलिमेंट। तो इसमें फंक्शन में कह रहा है कि सेट ए में कोई सा भी क्वेश्चन आपका गिवन होगा, सेट ए में जो भी एलिमेंट होंगे
उन सभी की एक अलग अलग इमेज सेट बी में होनी चाहिए, तो वो एक फंक्शन होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय like this. We can say that this function from A to B. So this is a function. इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे अभी, बट हमने 11th क्लास में ये समझ रखा है अच्छे से, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं. सो जस्ट दिस इज फॉर जस्ट क्विक रिविजन्स. सो दिस इज अ फंक्शन. नाउ अब हम 12th क्लास के ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की, कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है. एम्प्टी का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो. सो आर रिलेशन R in a set A is called empty relation. Suppose we just want to write the statement of this relation. A relation R, because we can represent a relation with this symbol. So a relation R in a set कोई भी सेट हम ले सकते हैं एक ही जगह, P Q R A B C D anything. Set A is called empty relation if no element of set A related to any element of set A, and we can represent like that. R empty relation we can represent like that is a subset of A cross. This is a empty relation. Or we can also say that this is a void relation or null relation. We can also say that. तो बेसिकली ये इसकी स्टेटमेंट है एम्प्टी रिलेशंस की, एम्प्टी रिलेशन की. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है, A इज इक्वल टू 5, डिफाइंड है, डिफाइंड बाय A comma B, A minus B is equal to 12. So for this relation we all know A comma B come from where? A cross A. Is it clear? And every element come from the set A. If we just want to find this, so for this R suppose A is 5 and B is 4. So what will come? A is 5 and B is 4. So it will never come equal to 12. 5 minus 4 is equal to 1. 5 minus 4 is equal to क्या हो जाएगा? 1, जो कि 12 के इक्वल नहीं है, 12 के इक्वल नहीं है. ओके, सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस वन. हमें वही एलिमेंट ए बी की जगह लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या है? 12 है. ओके,
तो सपोज कीजिए कि हमने ए की जगह 24 ले लिया और बी की जगह ले लिया 12। सो 24 में 12 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन 24 और 12 ए सेट में प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। इसलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। और आर बेसिकली होता क्या है, आर जो है वो होता है ए क्रॉस ए। ओके, तो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें आर में नहीं आएगा यहाँ पे जिनके ऑर्डर पेयर को माइनस करके हमें क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। सो दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on a set A on a set A is said to be a reflexive if every element of A is related to itself. This a condition for the reflexive relation. Now let us understand, and also we can understand like that. For all element A belongs to set A and doublet of this element A, order pair A belongs to R. This R is called a relation. A relation means A cross A. Is it clear? So, if this condition will fulfill, we can say that this is a relation. Suppose that, for example, let A is 1, 2, 3. Now A cross A. For if this reflexive, this is a R. If this, if R is this, if R is this, so we can say this is a reflexive relation. This is reflexive relation. Element also present in a set A. It means जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, और जो भी हम रिलेशन में ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, ये जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है इस रिलेशन में, ये जो है ए क्रॉस ए में प्रेजेंट होनी चाहिए जब हम इसका ए क्रॉस ए निकालें। ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता ही कर चुके हैं, जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, इसके बाद 2,1, 2,2, 2,3 एंड सो ऑन। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1,1 है, 2,2 है, यहाँ आगे से 3,3 भी आएगा। इट मीन्स ये जो रिलेशन है वो कैसा है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज इट क्लियर?
और इसमें जो एलिमेंट लिए गए हैं वो ए में मौजूद है। 1 ए में प्रेजेंट है। अगर आप देखें 2, कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लें ऑर्डर पेयर से, 2 प्रेजेंट है ए में, 3 ए में प्रेजेंट है। तो जो भी एलिमेंट इसके अंदर लिए जाए वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में, जो भी आपका सेट गिवन होगा उसमें गिवन होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, एक ये और एक ये कंडीशन, तो वो रिलेशन जो भी होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड अभी एक्सरसाइज जब हम करेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे या एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड इज आई थिंक सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, a relation सभी की डेफिनेशन इसी तरह से स्टार्ट होती है। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be a symmetric relation said to be a symmetric relation if and only a comma b belongs to R plus b comma a reverse of this also belongs to R for all a comma b also belongs to A. So these two conditions should be followed for this symmetric relation. Suppose if set A, example, set A is given 1, 2, 3. So for this relation, suppose that 3, 4 and 4, 3. If these two are present in A cross A, so you can say that this relation is symmetric. If you find A cross A, because we all know, हम सभी जानते हैं A क्रॉस A जब निकालेंगे, जो भी A क्रॉस A होगा वही R होगा। सो और क्वेश्चन में R अगर डायरेक्टली गिवन है और सेट A गिवन है, तो आप A क्रॉस A निकाल सकते हैं और उसमें से मैच करके देख सकते हैं कि क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर उसमें प्रेजेंट हैं। अगर उसमें प्रेजेंट होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सो जब इसका ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे ए क्रॉस ए का, तो क्या 3, 4 प्रेजेंट होगा इसमें? क्योंकि यहाँ कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए ऑल्सो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एलिमेंट 4 है ऑर्डर पेयर में, जो कि 4 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो मतलब ये 4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो ये चीज़ें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसी की जगह पर आपसे ये बोल दूं कि आर आपका ये गिवन है 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1, सो देखिए 1 और 2 दोनों प्रेजेंट हैं, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू ए,
ए में प्रेजेंट है, एंड यहाँ 1 और 2 और इसका रिवर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड है, और इसके अपोजिट यहाँ सेकंड 2 फर्स्ट पे है और 1 यहाँ पे है। सो ये रिलेशन जो होगा, ये आपका कौन सा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन होगा, बट ये वाला आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह के रिलेशन सिमेट्रिक होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये, और इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। नाउ ट्रांसिटिव रिलेशन। आप समझते हैं कि ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? तो इसका भी स्टेटमेंट जो है सेम एज इट इज है। A relation R in a set A is said to be transitive, is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC also belongs to R. For all A, B, C also belongs to A. So, if any relation fulfill all these conditions, this one, this one, this one as well as this one, मतलब ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये चारों कंडीशन जो रिलेशन फुलफिल करेगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, सपोज करिए कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक रिलेशन गिवन है आपको जिसमें दिया 1 2 2 3 एंड 1 3। तो क्या ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है? चेक करते हैं। आर कैसे निकला आपका, ए क्रॉस ए से निकला है, ठीक है। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसमें 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 3 आएगा। अब देखिए ए बी मतलब 1 2 एंड दिस एलिमेंट कम फर्स्ट and 2 3, this is also, these two are same and rest of the come in the third, बचे हुए तीसरे में आने चाहिए 1 3, यहाँ आ रहे हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 का ए में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है, ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है। रिलेशन आर जो भी आपका गिवन होगा उसमें ये चीज आपको चेक करनी होगी। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो जो भी रिलेशन है आपने कैलकुलेट किया है या क्वेश्चन में गिवन है, जो भी कंडीशन है, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हैं तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। इज इट क्लियर? इसके अभी जो है एक एग्जाम्पल अभी करेंगे जिसमें
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, ये सारे के सारे रिलेशन जो है एक साथ हमें सॉल्व करेंगे. And now equivalence relation. Equivalence relation. A relation R in a set A is said to be equivalence equivalence relation if R is reflexive, symmetric, and transitive. मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, तीनों है, तभी वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए पहले आपको रिफ्लेक्सिव की रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी कि वो एक रिफ्लेक्सिव है. उसके बाद तुम्हें बताना होगा कि वो एक सिमेट्रिक है. वही रिलेशन आपको ये प्रूव करना होगा कि वो एक ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव रिलेशन भी है. देन आप उसके बाद आप ये चीज लिख सकते हो कि वो एक रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ठीक है. तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. इज इट क्लियर? नाउ three conditions should be follow for this relation, for equivalence relation. Is it clear? Now let us understand with an example how can we prove this. This is a reflexive, symmetric, and transitive, all other things and equivalence relation. So for this, we can take an of example for this. Determine whether each of the following, suppose I just want to write a question. Each of the following relation, क्वेश्चन किस तरह से दिए होंगे. Relations are reflexive, transitive or symmetric, symmetric and transitive. First part, relation are on the set A 1 2 3 dot dot 13 14. It means last element is 14. Defined as defined as
such that 3x minus y is equal to 0. This is a question. And second question also, second part is also given in this question. Let us understand first of all relation R on set natural number of all numbers defined as R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, and one condition is given, x less than, so this is given basically. Now let us understand the solution of first part. Relation R on set A. So A is given 1 to 14. 13, last element is 14. And R defined over this, R says x comma y such that 3x minus y is equal to 0. एक कंडीशन गिवन है इसमें कि 3x x और y ऐसी वैल्यूज इसमें से आपको पिक करनी है जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर उनकी वैल्यू 0 आ जाए. सपोज कि आपने x की जगह 1 ले लिया, y की जगह 2. तो अब यहाँ पर आप जब 3 इंटू 1 माइनस 2 करेंगे तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए. मतलब 1 और 2 आप नहीं ले सकते. तो यहाँ पर आपको इस तरह से x और y की वैल्यू लेनी है कि इस रिलेशन को फॉलो करे, फुलफिल करे और 0 आना चाहिए. तो इस तरह का आपको रिलेशन बनाना है. सपोज करिए r इज इक्वल टू x की जगह आप 1 ले लेते हैं तो y की जगह आपको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये आपका 0 आ जाएगा. तो एक आपका ये एलिमेंट प्रिपेयर हो, ऑर्डर पेयर 1,3. इसके बाद ऐसे ही आपको इसमें वैल्यू पुट करके देखना होगा. जैसे 2,6, 3 2 जा 6 और यहाँ 6 रख देंगे. अब यहाँ 3 3 जा 9, और जब यहाँ 3 रखेंगे आप x की जगह तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी 9 चाहिए. तो मतलब आपको 3,9 का पेयर लेना है. उसके बाद 4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. 4,12. उसके बाद 5 रखेंगे यहाँ, 5 3 जा 15, और y की जगह फिर 15 रखना पड़ेगा, जबकि 15 आपके सेट में गिवन में है ही नहीं. तो ये लास्ट आपका यही बनेगा 4,14. तो ये आपका R बन गया. अब आपको इसमें 1 बाई 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देखना है कि ये रिलेशन जो आया है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दो थी. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दो थी जो कि हमने अभी पढ़ी. वो थी कि कोई जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट अगर A में प्रेजेंट है तो उसका डबलेट भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ऑल्सो प्रेजेंट इन R. सो इसमें एक भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है. सो यू कैन राइट लाइक दैट 1,1 not belongs to R. So R is not, so R is not reflexive. Okay. इसके बाद फॉर सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक में क्या क्या कंडीशन थी हमने अभी पढ़ी कि अगर ए कॉमा बी, if a comma b present in R and b comma a also present in R, opposite. So suppose 1 comma 3 we should take and 3 comma 1 also present in this, नहीं है, 3 comma 1 भी present होना चाहिए। अगर हम 2 comma 6 को ले लेते हैं तो 6 comma 2 भी present होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 comma 9 अगर पिक करते हैं हम तो 9 comma 3 होना चाहिए। तो मतलब एक भी एलिमेंट जो है इस तरह का इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो आपकी सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन कहती है। सपोज ए वी शुड टेक 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 प्रेजेंट इन आर एंड 3 कॉमा 1 नॉट प्रेजेंट इन आर, so that R is not symmetric relation. Similarly for transitive relation, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है? इफ ए कॉमा बी प्रेजेंट इन आर, बी कॉमा सी present in R and also A comma C present in R. So let us check 1 comma 3. Okay. Suppose 1 comma 3 present in R. Okay. And 3 comma 9 present in R. Okay. 3 comma 9 also present because these two are same. And after that rest part, मतलब जो बचे हुए 1 comma 9 इसमें प्रेजेंट होने चाहिए 1 comma 9 not present in R. Okay, so this is not a transitive relation. So R is not a transitive relation. एक भी कंडीशन जो आपको पहले मैंने समझाई है वो गिवन नहीं है तो वो रिलेशन नहीं हो। अब इन्हीं के लिए अगर आप कोई आपसे इसी में पूछे इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर आपको बात करें तो इक्विवेलेंट तो ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस के रिले इक्विवेलेंस रिलेशन वही रिलेशन होते हैं जो कि ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो एंड रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज आल्सो नॉट this relation is also not a equivalence relation because it is not reflexive, symmetric and transitive relation. सो बेसिकली इस तरह से इसके आपको सॉल्यूशन करने होंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको इन सभी टाइप्स ऑफ रिलेशन की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, उसकी की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किसी भी टाइप के रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक्चुअली में करना क्या होता है। सो
ये था इस वीडियो में आज, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचे हुए क्वेश्चन पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।